हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर, यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Mineral fuel. Mineral fuel is the most important here. The mineral fuels include a coal, petroleum, natural gas, atomics, and radioactive minerals here. You know that the mineral is a fuel here. Fuel include a coal, petroleum, natural gas, and atomic and radioactive mineral. The first here in India, coal is the primary source of commercial energy. You know that in India, coal is the primary source of commercial energy. It is used as a fuel in industry and thermal power station, and also for domestical purpose in some part of the country. It is also used as raw material in a chemical and fertilizer industry, and it is a production of thousands of items of daily use. There is important here. It is also used as raw material in chemical and fertilizer industry, and there are production of the thousands of items of daily use. As per the assessment of January 2005, the total coal reserve of the country stand at 2,47,847 million ton. That is important here. 2005 Jan, a total coal reserve is the country has stand at 2,47,847 million ton. Unfortunately, there are bulk of the Indian coal reserve are of rather a poor quality. There is unfortunately, there is the most important here, a poor quality of the coal here. We meet a part of our cooking coal is a requirement through the import. In India, emphasis the began a later setting of thermal and super thermal power station and are the near the coal field, and electricity generated is the supply to far off the place through the transmission line here. At one time, Indian Railway were a largest consumer of coal. You know that there is important. At one time, the Indian Railway consume a large amount of the coal. Since there is a have switched on their use of diesel and electricity, and they are no more there is a direct consume of coal. There is a difference for the next generation here. Here show the table. There is the most important. India is a consumer of here. There is an important consume the 2005 to 1950 to 51. There is the most important consume here. The 1950 to 51 there is a production of the million ton is the 32 only, and 60 to 61 there is 55.7 million tons consumed only, and 70 to 71 there are 76.3 millions, and 1981 there are 118.8 million, and 1991 there are 225.7 million, and 2005 there is a 376.63 million ton are consumed here. There is the most important in the table. The next year distribution. The distribution in a coal in India occur two important types of coal field. The coal in India occur in the two important types of coal field. They are the Gondwana coal field and territory coal field. Territory coal field and Gondwana is a coal field. There are two types. Out of the total and coal reserve and production in India, Gondwana coal is a field contribute of 98%. Gondwana coal field is contribute here 98%, and the rest 2% is produced by territory coal field. The Gondwana coal field are located in the sedimentary rock system of lower Gondwana S. They are distributed chiefly in their river valley of Damodar, Jharkhand, West Bengal. The valley of here, Damodar, Jharkhand, West Bengal, the son of Madhya Pradesh, Chhattisgarh. The Madani is Orissa, the Godwari is Andhra Pradesh. Godwari is Andhra Pradesh, and the Bradha is the Maharashtra. Theoretically, coal field occur in the extra peninsular area, which include Assam, Meghalaya, Nagaland, Arunachal Pradesh, Jammu Kashmir, and Sikkim here.
Besides the lignite or brown coal are found in the coastal area of Tamil Nadu, Gujarat, and in the land basin of Rajasthan area. The Jharkhand rank highest in production as well as the reservoir of coal in India. Jharkhand is the highest rank of production of the reserve of coal in India. The coal deposit of Jharkhand mainly occur in Dhanbad and Hazaribagh. Hazaribagh is most important, is a center located in Jharkhand. There are mainly deposit coal on this side of Dhanbad and Hazaribagh. And the Palamu district is a Banbad district of most important coal field of Jharia and the Chandpura are located. The oldest coal field of the Rani Ganji in the situated in a West Bengal. The Ranji Ganji is situated in West Bengal. It is the second largest coal field in India. The Rani Ganji is a coal field stretches as a Brandhavan and Pirolis district. In the Chhattisgarh, coal deposit occur in Bilaspur and Sarguja district. There is important in a Madhya Pradesh coal deposit are found in a Siddhi, Sahdol and Chandravara district. There is important Singrauli as a coal field in the Sandol and Siddhi district is the largest in the state. In Andhra Pradesh, coal occurred in the district of Hyderabad, Karimnagar and the Warangal and Khammam and the best Godavari. In Orissa, Talakchar in the important coal field. Other coal field are the Sambholpur and Sundargarh. Sundargarh is a district in the Maharashtra. The coal fields are found in the district of Chandpura, the Yotumala and Nagpura. This Nagpur is important in a comparison to India as a coal reserve. The laminate in the reserve are relatively is a modest. The bulk of the lignite reserve are located in the and the around Nevali in the Tamil Nadu, and significant lignite of reserve are found in Rajasthan, Gujarat, Pondicherry, and Jammu and Kashmir. The important point I have in this box, there is a most important point, notable point here. A coal is used as raw material in a chemical and fertilizer industries and in the production of thousands of items of daily use. You know that there is an important point. Coal is used as a raw material in a chemical and fertilizer industries and it is a production of thousands of items of daily use. And coal are mainly found in the Gondwana and Theory coal field. The Gondwana is the most important of coal is found here. The state of Jharkhand, West Bengal, Chhattisgarh, Andhra Pradesh and Odisha are leading to the producer of coal. The bulk of lignite of reserve are found in and around Nevalis in the Tamil Nadu. There is an important point here. Come on, there is the most important here. A major is a coal field in India. There is a most important map on your screen. India is a major coal field here. You know that there is a most important is a coal opposite of the India. There is a production here. Nichagams is a Jammu and Kashmir side. Kolkata. There is an important point here on the Jammu Kashmir side. And also is a Rajasthan is a Palana. And the other side is the most important here on screen. There is Arunachal Pradesh side. Miri, Dalfa, Milk Hill. There is the most important support here. And also here are important ports here. There is the Jharkhand sites. The Jharkhand is the most important here. Why there is something there. Amtal Church, Tava Valleys, Varhadha, and there are on a spot they are most important. And Union Valley is also is important for the a major coal field on your screen. There is the most important for the exam view here. यहाँ पर हमारा जो अगला पॉइंट आया है खनिज ईंधन। देखिए खनिज ईंधन के अंतर्गत देखे जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण खनिज के बारे में जो हम यहाँ विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। सबसे पहले अगर बात करें ईंधन की गुणवत्ता में युक्त खनिजों में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और रेडियोधर्मी खनिज जो है शामिल है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है
और ये खनिज का अपना एक विशेष स्थान रखता है भारतीय इकोनॉमिक्स में। और यहाँ पहला जो है खनिज क्या है, पहला खनिज के अंतर्गत देखा जाए तो कोयला। तो ये कोयला काफ़ी महत्वपूर्ण है और कोयला आपको पता है भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है और इसके कारण ही भारत जो है काफ़ी रिचेस में गिना जा सकता है। भारत में कोयला जो है वर्ज्य की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, यानी भारत में कोयला जो है वर्ज्य की जो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत के रूप में देखा जाता है और देश के सभी कारखानों में ईंधन के रूप में तथा सभी ताप विद्युत गृहों में देश के कुछ भागों में आज भी कोयला घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, कोयला का उपयोग आज भी बरकरार है और इसका प्रयोग कच्चे माल के रूप में रसायन एवं उर्वरक कारखानों में तथा दैनिक जीवन में प्रयोग की जाने वाली हजारों वस्तुओं में उत्पादक में होता है। तो देखा जाए जो कोयला है भारत के लिए एक महत्वपूर्ण खनिज तत्व है और ये प्रमुख है और इसका उपयोग हर एक क्षेत्र में बखूबी देखने को मिलता है। कहते जनवरी 2005 में किए गए आकलन के अनुसार देश में कोयला के कुल भंडार लगभग 2,47,847 मिलियन टन थी। तो आप समझ सकते हो कि अगर 2005 की आकलन की बात करें तो यहाँ पर जो है कोयला का भंडार काफ़ी थी, यानी 2,47,847 मिलियन टन थी। परंतु खेद इस बात की है कि सकल भंडार में कम गुणवत्ता वाले कोयले की मात्रा अधिक है, यानी जो प्योर कोयला होता है वो कोयला हमें नहीं इस क्षेत्र में है। कहते हैं यहाँ पर बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि यहाँ कोयला की जो गुणवत्ता है बहुत ही बेकार है और इसमें कोयला की जो अधिकतम मात्रा जो है बेकार कोयला की है जिसमें गुणवत्ता नहीं है। कहते हैं अच्छी क्वालिटी कोयला नहीं होगा तो उसका अपना ही महत्व अलग हो जाता है और अपना महत्व भी खो देता है। तो यहाँ पर देखा जाए जहाँ 2,47,847 मिलियन टन कोयला है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इसमें अच्छे कोयला की मात्रा बहुत ही कम है। कहते हैं कोकिंग कोयले की आवश्यकता की जो है आपूर्ति आयात द्वारा की जाती है। तो कोकिंग कोयले की आवश्यकता की पूर्ति आयात किया जाता है और भारत में ऐसे प्रयासों को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है जिसके अंतर्गत विद्युत ताप गृहों को उन्हीं स्थानों पर स्थापित होती है जो कोयला उत्पादक क्षेत्र में हो। देखिए विद्युत ताप गृहों का जो है उन्हीं स्थानों पर स्थापना होती है जहां पर कोयला का भंडार उपस्थित हो। इससे कोयला जो है बहुत आसानी से जो है उनके जो है विद्युत ताप गृह तक पहुंच जाता है और इससे कोयले जो है बहुत कम लागत लगती है और इसके समय व्यस्त साल में आते हैं। इन ताप गृहों में उत्पादित विद्युत ऊर्जा को जो है सस्पेंशन द्वारा दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाया जाता है। कभी कोयले की खपत का सबसे बड़ा उपभोग भारतीय रेल हुआ करता था। आपको पता है पुराने समय में अगर रेलवे की बात करें तो जितने भी रेल होती थी वो कोयले पे ही चला जाता था, लेकिन आज कोयले के स्थान जो है डीजल ने ले लिया है और विद्युत ने ले लिया है। अब देखिए डीजल का उपयोग तो कहते हैं ख़त्म लायक थी, लेकिन विद्युत का उपयोग जो है कंटिन्यू चलाया जा सकता है। तो विद्युत पे आ जाना भारतीय रेल का ये बहुत बड़ी जो है उपलब्धि थी। कहते प्रयोग से भारतीय रेल अब कोयला का सीधा और प्रत्यक्ष खपत करने वाला ग्राहक नहीं रहा, यानी कोयले का जो है खपत अब रेलवे में शून्य के बराबर हो गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्णता को यह दर्शा रहा है। यहाँ पर एक टेबल के अंतर्गत आप देख सकते हो कि यहाँ पर भारत में कोयला का उत्पादन ग्रेनाइट सहित कैसे हुआ है और इसके उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो है कुछ आंकड़े दिखाए गए हैं। कहते हैं 1950-51 में अगर देखिए उत्पादन जो था 32.8 मिलियन टन था, लेकिन 60 से 61 के दशक में जो है बढ़ गया 55.7 हो गया और 70 से 71 में और भी बढ़ा, कहते हैं 76.3 थी और 80 से 81 में जो है 118.8 बढ़ गई। तो काफ़ी महत्वपूर्णता देखिए बढ़ता ही जा रहा है। और 1990-91 की बात करें 225.7 हो गया और वहीं आगे बात करें 2004 और 5 में तो ये 376.63 हो गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि काफ़ी जो है बढ़ता ही जा रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात को यहाँ दर्शाया गया है जो आपके समक्ष था। और देखिए यहाँ पर अगर 50 की बात 51 की बात करें तो यहाँ पर 32 था और वहीं अगर हम देखें आगे तो 300 से अधिक पार कर गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्णता को यहाँ दर्शाया गया है। अब यहाँ बात अगर हम करें जो है कोयला का वितरण तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा कि कोयला का वितरण किस प्रकार है देश में। कहते हैं भारत में कोयला दो प्रमुख क्षेत्रों में उपलब्ध है। पहला क्षेत्र जो है गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहलाता है, यानी पहले क्षेत्र को हम गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहते हैं और दूसरा जो है टर्शियरी कोयला क्षेत्र कहलाता है, यानी दूसरा जो है टर्शियरी कोयला क्षेत्र कहलाता है। भारत का कोयला भंडार एवं उसके उत्पादन का
जो है 98% गोंडवाना कोयला क्षेत्र से प्राप्त होता है। तो आप समझ सकते हो कि 98% जो है गोंडवाना कोयला क्षेत्र से प्राप्त होता है तथा सिर्फ 2% टेस्टेड कोयला क्षेत्र से मिलता है। तो यानी गोंडवाना का यहाँ पर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा। गोंडवाना कोयला क्षेत्र जो है गोंडवाना जो है काल से बनी प्रतदार शैली समूह जो है समूहों के अंतर्गत अव्यवस्थित है और इसका भौगोलिक वितरण भी भूवैज्ञानिक कारकों से नियंत्रित है। कहते हैं भू यानी यहाँ पर जो है भौगोलिक वितरण काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह मुख्य रूप से दामोदर जो कि झारखंड एवं पश्चिम बंगाल के आता है, सोन जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है और महानदी उड़ीसा, गोदावरी आंध्र प्रदेश तथा वर्धा महानदी नदी घाटियों में वितरित है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर स्थान है। कहते हैं टेरेस्ट्री कोयला क्षेत्र भारतीय प्रायद्वीप के उत्तरी भारत क्षेत्रों में जिसके अंतर्गत जो है असम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा सिक्किम आते हैं। ये सारे क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं इस क्षेत्र में। और इसके अतिरिक्त जो है भूरा कोयला, इसको हम लिग्नाइट के नाम से जाना जाते हैं, इसको भूरा कोयला कहते हैं शुद्ध लैंग्वेज में, और इंग्लिश में इसको लिग्नाइट के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु के जो है तटबंधीय क्षेत्र गुजरात एवं राजस्थान में मिलता है। तो देखिए गुजरात भी जो है कोयला के भंडार के लिए परिपूर्ण है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। झारखंड कोयला भंडार एवं उत्पादन दृष्टि से पूरे देश में सब प्रथम है। देखिए ये जो है यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत से कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है कि जो है कोयला का भंडार का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भारत में। तो झारखंड कोयला भंडार एवं उत्पादन दृष्टि से पूरे देश में सर्वप्रथम है और कोयला झारखंड के धनबाद, हाजीराबाद एवं पलामू जिलों में मिलता है। झरिया एवं चंद्रपुरा के महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र जो है धनबाद जिला में आते हैं। यानी देखा जाए धनबाद जिला काफ़ी महत्वपूर्ण है और सबसे पुराना कोयला क्षेत्र जो है रानीगंज पश्चिम बंगाल में है जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है और इसका विस्तार जो है बर्धमान और पुरुलिया जिलों में फैला हुआ है। यानी पुरुलिया जिला काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और छत्तीसगढ़ में कोयला निक्षेपण बिलासपुर तथा जो है सरगुजा जिले में मिलता है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश में कोयला के निक्षेप सीधी यानी शहडोल एवं छिंदवाड़ा जिलों में मिलती है। आंध्र प्रदेश में कोयला के जो है निक्षेप जो अलीदाबाद, करीमनगर और बरगल और खम्मा तथा पश्चिमी गोदावरी जिलों में मिलते हैं। उड़ीसा अगर देखें तो राज्य में जो है तालचेर कोयला क्षेत्र के अलावा संबलपुर और सुंदरगढ़ जिलों में भी कोयला के निक्षेपण प्राप्त होते हैं। महाराष्ट्र में कोयला निक्षेपण चंद्रपुर और यवतमाल तथा नागपुर जिले में मिलते हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं भारत के कोयले के भंडार जो क्षमता की तुलना में उसके जो है लिग्नाइट यानी भूरा कोयला के भंडार साधारण है और सबसे अधिक लिग्नाइट के भंडार जो है तमिलनाडु में मिलते हैं। यानी नेहोली तमिलनाडु में मिलते हैं और इसके अलावा लिग्नाइट के महत्वपूर्ण निक्षेपण राजस्थान, पंडिचेरी, जम्मू कश्मीर राज्य में भी मिलते हैं। तो कोयला के देखिए भंडार कितनी विस्तृत है यहाँ पर। अगर इंपॉर्टेंट बातों के और ध्यान दें तो हमें पता लगता है कि इसका प्रयोग, देखिए ये बात नोट करने वाली है कि इसका प्रयोग कच्चे माल के रूप में रसायन एवं उर्वरक खदानों में तथा दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले हजारों वस्तुओं में होती है कोयले का। कोयला मुख्य रूप से जो है गढ़वाना तथा तरसेरी कोयला क्षेत्र में पाया जाता है, ये भी महत्वपूर्ण बात है। और कोयला उत्पादक में अग्रणीय राज्य जो है क्रम झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा आता है। लिग्नाइट के निक्षेपण में बहुत बड़े भंडार जो नहली एवं उसके आसपास के क्षेत्र में मिलते हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस इंपॉर्टेंटता को जो है मैप में भी दर्शाया गया है। चलिए देखते हैं मैप में क्या दर्शाया गया है। अब यहाँ मैप में भी आप देख सकते हो कि भारत में कोयला उत्पादन क्षेत्र को यहाँ बखूबी दर्शाया गया है और आप देख सकते हो कि मैक्सिमम जो है किस क्षेत्र में जो है कोयला भंडार दिख रहा होगा। तो देखिए ये जो है कोलकाता के साइड दिखेगा, राजमहल साइड जैसे सिगोरी, उमेरिया, राजगुड़ा, कोवल, रामपुर, तलचोड़, बलमपरी, ठीक है, ये सारे क्षेत्र है। अगर पेपर में आ जाता है तो कोयला क्षेत्र के आप जो है अपने दिमाग में इस क्षेत्र को अंकित कर लीजिए और इस क्षेत्र को दिखा सकते हो। इवन कि राजस्थान में भी आपको दिख रहा होगा, पलाना में जो है कोयला का क्षेत्र दिख रहा है। और देखा जाए तो और भी क्षेत्र यहाँ पर आया है, वो है नीचा आम,
कलकोट यानी जम्मू कश्मीर के साइड भी आपको ये नज़र आ रहा होगा। और देखा जाए तो यहाँ पर अगर डेलफा, मीरी जो कि आपको असम के साइड है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और दार्जिलिंग में भी कोयला का भंडार यहाँ देखने को मिल रहा है। तो ये क्षेत्र जो है कोयला के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये आपको जो है अपने पेपर के लिए भी, एग्जाम के लिए भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और ये सारे कोयला का क्षेत्र जो है अपने आप में एक महत्व रखता है इंडिया के जो है कोयले क्षेत्र के अंतर्गत। The most important here resource, the petroleum. The petroleum here is an important topic. The petroleum has often been to call liquid gold because of its value on our modern civilization. Our agriculture industry and transport system depend on the petroleum in several ways. There is the most important here of petroleum. Petroleum is also called to the gold because their use of is agriculture and industry and transport system here. Petroleum, there is a crude is a petroleum is a mixture of combustible as a hydrocarbon in a solid, liquid and gaseous form. There is important here. The crude petroleum is a mixture of combustible hydrocarbon is a solid, liquid and gaseous form. Petroleum products use of fuel, lubricant, material for the manufacturing of the synthetic derivatives and chemical required in industries. Petrol, kerosene, diesel, detergent, and here synthetic fiber, plastic, cosmetic sector are important product of derived from petroleum. You know that petroleum is a many product here. There are petrol, kerosene, diesel, detergent, synthetic fibers, and plastic, cosmetic, and etc. They're important product, and there is a form of petroleum. There is an important point. The next here distribution. The distribution here petroleum occurred in the anticlines and fault traps. In India is found in the sedimentary rock formation. Most of such as area lies in the Assam, Gujarat and offshore area along the western coastal. That is important. The entire protection of India till today is comes from the Assam belt. Gujarat is a combines the belt and the Bombay High. The Assam belt is extended from to the Dehangal and the basin in the extremely is the northern east of Assam along the outer flank of hill ranges forming the eastern border of Batra and Surama Valley. There is an important here. The Gujarat is a combine is a belt extend from the Mehsana Gujarat in the northern to the continental shelf of the coastal right up to the Ratnagiri is a Maharashtra in the south. It is covered by Mumbai High, which is the largest producer of petroleum in a country. There is important here. It's a cover Mumbai High, which is the largest producer of petroleum in a country. In Assam, the oil producing area is located in the Lakhimpur and the Sivasnagar district. There is important here. It's a cover to Mumbai High, which is the largest producer of petroleum in a country. In Assam, the oil producing area is located in the Lakhimpur and the Sivasnagar district. The oil well is located mainly around the Devois is a Nahrakatia and the Sevagar as the Rudra Sagar. In Gujarat is the oil producing area cover of Vadodara, Broch, Kheda and the Mehsana and the Surat district. Recently petroleum reserve and the discovered in the state of Rajasthan covering to the major area of Bikaner, Baremar and the Jasmer and the gas has been to discover along the eastern coast of the Godavari and Krishna is deltas. The protectivity of area lies of Bay of Bengal, which is a cover to the coastlines along the state of West Bengal, Odisha, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, and Andaman and Nicobar Island. There is a most important state here, the production of petroleum. Important point in this box, there is the most important petroleum occur in the anticlines and fault traps. This is important here. Petroleum occur in anticline and fault traps.
In India, it is found in the sedimentary rocks. Most of such area is lies in the Assam, Gujarat, and off the shore area along to the western coastal sea. There is a petroleum, kerosene, diesel, detergent, synthetic fiber, plastic, cosmetics, etc. are important products derived from to the petroleum. There is a most important point here. Petroleum products are used in a fuel, lubricant, material from the manufacturing synthetic derivatives and chemical required in the industries. There is a most important and important here the map. There is a most important map coming here. In this map, the petroleum product here show in this is an important part. There is an important is a Kasumbo is the most important here Bombay Highway, the petroleum product area, and there also here Arunachal Pradesh side, Assam side, their production is most important. Digwai and the Sivasagar, and there is a Marans as the most important spot of production of here petroleum. There is the most important in this map show the mainly here the two side, the Assam side and Gujarat side there is a production of petroleum here. As the most important also here the exam view there is all it's important you remember that only two side here petroleum product here found there is a Assam is a Arunachal Pradesh side and next year there is a Gujarat side. There are Gujarat and some part of Mumbai also show in your map. Here the show the most important India petroleum permeable area. You know that is a petroleum permeable area is a mostly found all over the India and there are also sea here. There is important area is found here. The main productivity here are there are produced basin on the commercially product of oil and gases here is a important the sea of the Arabian Sea side and there are important standing line that are show in a maximum side in the Bay of Bengal, Calcutta and the important part. And slanting line here show the basin of with the no significance oil and the gas shown here. Sleeping line here, sleeping line also mostly a Kerala side. There is important here Kerala side and there are other is here. Slanting line here show the basin with the uncontained prospect. This is the maximum the Gujarat and the other side. This is important for the permeable area on India. There are petroleum here. There are most important in this map. Here show the most important production of the crudely petroleum in India. You know that 1960-61 there is a petroleum product a million ton of 0.5% only. But increasing on 1970-71 there are 6.8 million ton. And next year 10 year after the 1980 to 81 there is a 10.5 is a million ton and the next 10 years is after is the 90 to 91 there are 33 is a million ton and 2000 and 2001 there is a 32.4 but there is a reduce on here of 2005 to 05 there is a 0.2% is a decreasing. There is the most important here production of crudely of petroleum in India. There is the most important show in your screen. कहते हैं कि सोना कितना महत्वपूर्ण है और सोने के लिए तो हर कोई ललायत होता है लेकिन अगर हम काला सोना की बात करें तो आप हैरानी में हो जाओगे कि ये त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है काला सोना की बात क्यों कहा जा रहा है। दोस्तों यहाँ काला सोना की बात जो हम कर रहे हैं वो पेट्रोलियम के ऊपर कर रहे हैं। पेट्रोलियम को जो है तरल सोना भी कहा जाता है यानी से काला सोना के रूप में भी जाना जाता है और पेट्रोलियम इतनी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी से जो है सारे उत्पाद बनते हैं और इसकी अगर आप उपयोगिता के बारे में पढ़ोगे और जानोगे तो आप हैरान होगे कि पेट्रोलियम का इस्तेमाल हर जगह जो है बखूबी की जाती है। तभी पेट्रोलियम इतनी महत्वपूर्ण है और इसकी महत्ता को जो है हम अनभिक्त नहीं रह सकते यानी इसके बारे में जानना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा क्योंकि जिसको दूसरा काला सोना के नाम से जाना जाता है आपको पता है कि सोना कितना महंगा होता है और दूसरा अगर कोई दूसरा उसकी जगह पे आ जाए तो बात क्या रहेगी। तो पेट्रोलियम को यहाँ पर सोने भी कहा जाता है। इसके पीछे जो है पेट्रोलियम की बहुमुखी उपयोगिता है यानी देखा जाए तो पेट्रोलियम की बहुमुखी उपयोगिता है यानी पेट्रोलियम कई जगहों पे जो है बखूबी प्रयोग किया जाता है चाहे हमारे कृषि हो चाहे उद्योग हो चाहे परिवहन तंत्र हो कई रूपों में इस पर निर्भर है यानी पेट्रोलियम पे ही ये सारे के सारे जो है निर्भर है।
कहते हैं कच्चा पेट्रोलियम जो है दहनशील हाइड्रोकार्बन का सम्मिश्रण है। यानी देखा जाए तो जो कच्चा पेट्रोलियम है दहनशील जो है हाइड्रोकार्बन का सम्मिश्रण है, जो कि गैस, तरल तथा गैसीय रूपों में होता है। उद्योगों में पेट्रोलियम उत्पादों का जो है कृत्रिम पदार्थों एवं आवश्यक रसायनों के निर्माण के लिए तेल व चिकनाई का युक्त पदार्थों के रूप में उपयोग भी किया जा सकता है। पेट्रोलियम के महत्वपूर्ण उत्पादों में पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, पेट्रोल के महत्वपूर्ण उत्पादों में पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल तो है ही है, प्लस देखिए इसका जो हमारे दैनिक जीवन में भी इसका उपयोग होता है, जैसे साबुन, कृत्रिम रेशे बनाने में, प्लास्टिक और अन्य उत्पाद जैसे परफ्यूम में भी पेट्रोलियम पदार्थों का ही उपयोग किया जाता है। तो आप समझ सकते हो कि पेट्रोल जो है काला सोना के रूप में क्यों जाना जाता है। कहते हैं पेट्रोलियम का आज हर जगह, चाहे वो वस्त्र आप पहन रहे हो, चाहे आप साबुन यूज़ कर रहे हो, चाहे प्लास्टिक यूज़ कर रहे हो, चाहे आप परफ्यूम यूज़ कर रहे हो, हर जगह पेट्रोलियम के ही उत्पाद आपको नज़र आएंगे, जो कि काफ़ी महत्वता को यहाँ दर्शाया गया है। यदि हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें यानी वितरण की बात करें तो आपको पता है कि ये काफ़ी क्षेत्रों में जो है बेखूबी मिल जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट तो यह असम और गुजरात के साइड ही इसका जो है मेन स्पॉट है। अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया था कि पेट्रोलियम कहाँ पर प्राप्त होता है तो आपके दिमाग में सिर्फ ये दो ही बात फोकस होना चाहिए, गुजरात और दूसरा जो है असम साइड। दो ही बात आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। और पेट्रोलियम के उत्पाद जो भी आता है सभी में जो है मैप जो है आप बेखूबी कर सकोगे। तो हम यहाँ पर बात जैसे वितरण की कर रहे हैं तो वितरण तो हमने बताया कि दो ही साइड है, फिर भी जो है इनकी महत्वता को देखें कि क्या है। कहते हैं वितरण की हम बात करें तो पेट्रोलियम जो है भ्रंशों और अपनियमितों में पाया जाता है। यानी पेट्रोलियम जो है भ्रंशों और अपनीतियों में पाया जाता है और भारत में यह अपसादी शेल संरचना में पाया जाता है। देखिए, भारत में अगर हम देखें पेट्रोलियम किधर साइड मिलता है तो आपको इतना दिमाग में रखना है कि अपसादी पत्थरों में जो है संरचना पाई जाती है। और इस प्रकार के अधिकांश क्षेत्र जो है असम, गुजरात और पश्चिमी तट के अपतटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यानी ये असम, गुजरात तथा पश्चिमी तट के अपतटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। कहते हैं अब तक भारत में पेट्रोलियम का उत्पादन असम पट्टी, गुजरात, खंबात की पट्टी तथा मुंबई हाईवे में ही हो रहा है। तो ये अभी के समय के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि असम पट्टी, गुजरात, खंब और जो है मुंबई हाईवे में ही हो रहा है। कहते हैं आसाम की जो पट्टी का जो विस्तार सुदूर उत्तर पूर्वी छोर पर जो है अव्यवस्थित दुहागढ़ बेसिन से लेकर पहाड़ी के जो है बाहरी छोर के साथ साथ जो है सुरमा घाटी की पूर्वी सीमा तक काफ़ी विस्तृत है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि इसकी जो है सुरमा घाटी के पूर्वी सीमा तक ये काफ़ी विस्तृत फैला हुआ है। कहते हैं गुजरात जो है खंभात पट्टी और गुजरात के उत्तर में जो है मेहसाना से लेकर दक्षिण में जो है रत्नगिरी यानी महाराष्ट्र, रत्नगिरी महाराष्ट्र के महाद्वीपीय जो है निम्नगमन तट पर फैली हुई है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि रत्नगिरी से महाराष्ट्र और महाद्वीपीय जो है निम्नगमन तट पर तक फैली हुई है। इसी के अंतर्गत जो है मुंबई हाईवे भी आता है जो भारत का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। यानी मुंबई हाईवे जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और भारत का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र के रूप में ये जाना जाता है। कहते हैं असम में उत्पादक क्षेत्र में जो है लखीमपुर और शिवसागर क्षेत्र जिलों में स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए कि असम में जो है इसका उत्पादन क्षेत्र लखीमपुर और शिवसागर जिलों में स्थित है। पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए जो है खरनकूप, डिगबोई, नहरकटिया और शिव सागर का जो है रुद्र सागर के आसपास स्थित है। तो ये जगह काफ़ी महत्वपूर्ण है पेट्रोलियम उत्पादन के लिए, चाहे वो खरनकूप हो या डिगबोई या नहरकटिया या शिव सागर या रुद्र सागर। ये काफ़ी महत्वपूर्ण जगह है जहाँ पर पेट्रोलियम को जो है आसानी से उत्पादन की जाती है और ये असम के साइड है। इसी प्रकार गुजरात राज्य में तेल उत्पादक स्थान जो है बड़ोदरा, भोरोच, खोड़ा, मेहसाना एवं सूरत जिलों में स्थित है। तो गुजरात के आप क्षेत्रों के नाम आप भली बात समझ गए होंगे कि बड़ोदरा, भरूच, खेरा और मेहसाना एवं सूरत जिले में स्थित है गुजरात क्षेत्र में। हाल ही में पेट्रोल के भंडार की जो है खोज राजस्थान के बीकानेर जिलांतर्गत बहुत बड़े क्षेत्र में एवं जो है बड़मोर और जैसलमेर जैसे में की गई है। अब देखिए, भारत में पेट्रोलियम की बहुत से जो है सोर्स है लेकिन इसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है
और आज भी ये हमें मिल रहे हैं। और इसका सबूत जो है राजस्थान में मिले, बीकानेर जिला स्तर बहुत बड़े क्षेत्र में और बंडमोर और जैसलमेर क्षेत्रों में की गई खुदाई से हमें मिली है पेट्रोलियम के बहुत बड़े भंडार। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश के पूर्वी जो है तटवर्ती गोदावरी डेल्टा और कृष्णा डेल्टा में जो है अन्वेषण के दौरान प्राकृतिक गैस मिली है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है। पेट्रोलियम भंडार के संभावित क्षेत्र बंगाल की खाड़ी भी है, जिसका विस्तार पश्चिम बंगाल की तटबंधीय रेखा के साथ साथ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक फैला हुआ है। तो यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए हमने जो है पेट्रोलियम के महत्वपूर्ण जो उत्पादक क्षेत्र, चाहे असम क्षेत्र हो चाहे गुजरात हो, अगर असम की हम शॉर्ट में बात करें तो असम में जो है ये क्षेत्र जो है मुख्य पेट्रोलियम उत्पादन उखनकूप, डिब्रूगढ़, नाहरकटिया, शिवसागर और रुद्रसागर के आसपास है। और गुजरात की बात करें तो ये वडोदरा, भरूच, खेरा और महसाना और सूरत जिले में स्थित है। और तीसरी जो महत्वपूर्ण आई है राजस्थान। राजस्थान में जो है बीकानेर में जो है बाड़मेर, जैसलमेर क्षेत्रों में पाई गई है। तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है। और आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट जो है गोदावरी डेल्टा और कृष्णा डेल्टा में जो है हमारे प्राकृतिक गैस के बहुत बड़े भंडार हैं। और कहते हैं पेट्रोलियम भंडार समावी क्षेत्र की बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, चाहे उड़ीसा हो, आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार समूह में भी ये जो है फैला हुआ है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि यहाँ इंपॉर्टेंट बात की बात करें तो आपके समक्ष जो है बहुत महत्वपूर्ण बात आ गई है, जिसको आपको कॉपी में नोट करना चाहिए। एक तरह से देखा जाए तो ये सारांश के रूप में है। कहते हैं पेट्रोलियम जो है अपनी नीतियों और भरोसों में पाया जाता है। भारत में ये अवसादी शैल संरचना में पाया जाता है, यानी अवसादी जो शैल है उसमें जो है पेट्रोलियम की असीमित भंडार हैं। ऐसे अधिकांश क्षेत्र जो है असम, गुजरात तथा पश्चिमी तटीय क्षेत्र के सहारे समुद्र के महाद्वीपीय जो निगमन तट पर मिलते हैं। तो आप समझ गए होंगे पेट्रोलियम निहित भंडार कहाँ कहाँ स्थित है। पेट्रोलियम के महत्वपूर्ण उत्पादों में पेट्रोलियम डीजल, मिट्टी का तेल, साबुन, कृत्रिम रेशे, प्लास्टिक, विविध सौंदर्य प्रसाधन वस्तुएं आदि आती है। तो आप समझ सकते हो कि पेट्रोलियम का देखिए उत्पाद ही कितना महत्वपूर्ण है। पेट्रोल के महत्वपूर्ण उत्पादों में पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, साबुन, कृत्रिम रेशे, प्लास्टिक, विविध सौंदर्य प्रधान वस्तुएं आदि आती है। आप जितने भी सामान यूज़ करते हो, कुछ ना कुछ जो सामान होते हैं उसमें पेट्रोलियम का उत्पाद का जो है उपयोग जरूर होता है। चाहे आप परफ्यूम यूज़ करो, चाहे आप कपड़े पहन रहे हो, चड्डी, जल, साबुन, कृत्रिम रेशे प्रयोग कर रहे हो, सब में पेट्रोलियम के उत्पाद जरूर जिसमें उपयोग किया जाता है। कहते उद्योग में पेट्रोलियम उत्पादों का कृत्रिम पदार्थ और आवश्यक रसायनों के निर्माण के लिए तेल का चिकनाई युक्त पदार्थों के रूप में उपयोग किया जाता है। तो चिकनाई करने के लिए भी पेट्रोलियम का जो है बखूबी उपयोग किया जाता है। तो देखा जाए तो पेट्रोलियम का बहुत ही उपयोग है, इसलिए पेट्रोलियम को जो है काले सोने के नाम से जाना जाता है। यदि सारणी में देखें तो देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात को उजागर किया गया है कि भारत में कच्चे पेट्रोलियम का उत्पादन किस प्रकार हो रहा है। आप देख सकते हो कि भारत में अगर देखें 1960 से लेकर 61 तक के बीच में देखें तो यहाँ पर बहुत ही जो है कम होता था और इस समय आवश्यकता भी कम थी, यानी 0.5 मिलियन टन ही जो होता था पेट्रोलियम उत्पाद होता था। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, चाहे 70 से 71 के दशक हो, उसमें 6 से जो है 8 जो है मिलियन टन की उत्पादन हुआ। वही 1980 से 81 यानी 10 साल के बाद 10.5 हुआ। तो ये मिलियन टन जो है काफ़ी बढ़ता ही गया। और सबसे अधिक बढ़ोतरी तो हमें देखने को तब मिली 1990 से 91 के दौरान, जहां पर 33 मिलियन टन जो है पेट्रोलियम का उत्पादन किया गया। लेकिन बाद में देखा जाए तो इसके मामला जो था 2000 और 2001 के बीच 32.4 मिलियन टन हुआ। लेकिन 2005 से 6 में जो है इसकी गिरावट दर्ज किया गया, जहां पर 32.2 जो है मिलियन टन का ही उत्पादन हो पाया। तो कहते हैं आने वाला समय पेट्रोलियम जैसे यूज़ हो रहा है, शायद ही इसका जो है कच्चे पदार्थ के रूप में हमें प्राप्त हो, क्योंकि पेट्रोलियम डीजल को बनने में लाखों करोड़ों साल लगता है और खपत करने में चंद सेकेंड ही लगते हैं। और जो है पेट्रोलियम का उत्पाद जो है बहुत ही दुर्गम कार्य है। तो आने वाला समय में जैसे आपको आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आया है और आपको पता है कि 2005 से 6 में घटता हुआ नजर आया है, तो संभवतः ऐसा ही आगे भी आंकड़ा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि पेट्रोलियम बहुत अमूल्य चीज़ है, इसको संभालने की आवश्यकता है, इसको जो है विवेकपूर्ण यूज़ करने की ज़रूरत है। तभी तो पेट्रोलियम काले सोने के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके बहुत से उपयोग हैं। और आने वाला समय में शायद आपको पेट्रोलियम के उपयोग के लिए कुछ भी न बचे, इसलिए आज जो है इस पर विवेकपूर्ण कार्य करने की आवश्यकता है।
अब देखिए इसी बात को अगर हम मैप के अंतर्गत समझें, और देखिए अगर मैप में अगर क्वेश्चन भी आपको आ जाता है कि पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र को दर्शाइए, तो आपको इसमें डरने की आवश्यकता नहीं। आपने जो है दिमाग में साफ रखना है कि ये जो होगा आपको असम साइड और दूसरा जो है राजस्थान के क्षेत्र जो है गुजरात के पास, उसमें आपको मिलेगा। गुजरात और एक दो जो है मुंबई हाईवे पे भी इसका है। तो आप देख सकते हो अगर हम गुजरात के साइड बात करें, ठीक है, तो मेहसाना आता है, कटहल आता है, कसांबा आता है और अंकलेश्वर आता है, जहाँ पर जो है पेट्रोलियम उत्पादन होती है। वहीं अगर हम असम के साइड देखें तो इसमें जो है शिवसागर, डिगम्बोई, मोरस, नहरकाटा, ये काफ़ी जो है पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र है। और कुछ क्षेत्र जो है राजस्थान के भी आप देखने को नज़र आए हैं, नए सोर्स मिले हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एग्ज़ाम में अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है पेट्रोलियम के अंतर्गत, तो आप इस पर जो है विस्तार पूर्वक लिख सकते हो। अब देखते हैं संभावित क्षेत्र कौन कौन से आते हैं, वो भी मैप में। अब देखिए यहाँ पर जो पेट्रोलियम संभाव्य क्षेत्र जो हो सकते हैं, पेट्रोलियम उत्पाद इस क्षेत्र में होने की संभावना है, जिसके बारे में हम यहाँ अज्ञात हम लोग हैं। हमें यहाँ पर पता नहीं है कि इसमें पेट्रोल होगा कि नहीं, लेकिन फिर भी साइंटिस्ट ये कहते हैं कि यहाँ पर जो है हो सकता है। अगर देखिए तेल, गैस और व्यावसायिक उत्पादन हेतु स्थापित बेसिन जो है आपको दिख रहा होगा, जो थोड़ा डार्क आपको नज़र आ रहा होगा, ये मुंबई के आसपास जो है मुंबई हाईवे में आपको नज़र आ रहा होगा, तो यही क्षेत्र है। और दूसरा जो है असम के साइड ही आपको नज़र आ रहा होगा, क्योंकि यही उत्पादन अभी क्षेत्र है जिसके बारे में हमें पता है। और गुजरात के भी क्षेत्र जो है इसी शेडिंग में दिख रहा होगा। उसके पश्चात है स्टैंडिंग लाइन। देखिए स्टैंडिंग लाइन जहाँ जहाँ है वहाँ पर जो है ज्ञात उपलब्धता वाले बेसिन, यानी ज्ञात है हमें कि है यहाँ पर। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है जम्मू कश्मीर साइड आपको नज़र आ रहा होगा तिरछा सा लाइन, तो उधर साइड इसमें जो है साफ दिखाया गया है कि इस क्षेत्रों में जो है होने की संभावना हो सकता है। अब तेल और गैस के बेसिन जो महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए उपयोगी नहीं है, उसको स्लीपिंग लाइन से दर्शाया गया है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है स्लीपिंग लाइन आपको गुजरात के साइड में खूबी दिख रहा होगा और केरल के कुछ क्षेत्र भी दिख रहे होंगे जो कि हमारे लिए उपयोगी नहीं है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है मानचित्र दर्शा रहा है। अंतिम जो है हमारा अनिश्चित संभावनाएं वाले क्षेत्र, अनिश्चित, जिसका निश्चित नहीं किया जा सकता कि होगा ही होगा। और देखिए अनिश्चित क्षेत्र जो है पूरे भारत में है, चाहे महाराष्ट्र के पूरे क्षेत्र हो, चाहे बिहार का हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, कहते हैं पंजाब हो, चाहे आपको उत्तर प्रदेश हो, सभी क्षेत्र में जो है संभावित क्षेत्र आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये हो सकता है कि पेट्रोलियम के उत्पाद और भी हमें मिले और आने वाले समय पेट्रोलियम हो सकता है। लेकिन इस बात को आपको ये भी बात समझना है कि ये जो है एक बहुमूल्य वस्तु है और इसका जो है हमें विवेकपूर्ण उपयोग करना है। अगर विवेकपूर्ण उपयोग नहीं कीजिएगा तो आने वाला समय में शायद हमें पेट्रोलियम ना मिल पाए। तो इस बात को आपको ध्यान में रखते हुए आगे क्रियाशील होना है। तो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एरिया, oil refinery in India. There is an oil refinery in India is the most important topic here. The crude is the petroleum taken from the oil field need to be refined is before it can be used. You know that the petroleum is a raw material here and crudely petroleum here. There is important to refine before the use. The petroleum is refined is the most important. Oil refining is a big chemical engineering industry involving a complicated process. Presently, there are 17 oil refineries in India under the public sector and one a private sector, which is belong to be Reliance Industries. You know that Reliance Industries is the most important, the private sector here. The Reliance Industry Limited, there is an important. This refinery as Digobai, Dungai, and Matis, all are there. Assam, Mumbai, other two side, Maharashtra also, and the Visakhapatnam, Andhra Pradesh, Burmai and Bihar, Koyali, Gujarat, and Mathura is a UP, and Panipat is a Haryana. There is a refining of their oil, and Kochi, Kerala, Mangalore is a Karnataka, and Chennai, Tamil Nadu. There is the most important spot here, the refinery of the petroleum. The only is a private oil refineries belong to be Reliance is an industry limited. It is located at the Jamnagar, Gujarat. Jamnagar, Gujarat is the most important and the spot here. This oil is refinery are the supplied the crude oil either by the ships or by the pipeline.
You know that there are ships and pipeline that supplies all over the part of the India. Third, there is an annual production showing the increasing of 10. There is a country has to be important petroleum and petroleum product to meet its requirement. There is important here. Presently, there is a 17 oil refinery in India. There is important. Presently, there are 17 oil refinery in India under the public sector, and one is only as a private sector, the Reliance Private Industry Private Limited. There is important. There is a one is a private sector only, the Reliance Industry Limited. And though there is annual production, so on increasing 10, there is a country has to be import of petroleum and petroleum product to meet its requirement. You know that there is a most important point here. यहाँ पर जो हमारा आया है अत्यंत महत्वपूर्ण, देखिए भारत में तेल शोध संयंत्र। भारत में तेल शोध संयंत्र क्या है? देखिए जो पेट्रोलियम होता है वो प्राकृतिक रूप में जो है एक रॉ मटेरियल होता है, यानी कच्चा पदार्थ होता है। आप जो प्राकृतिक में मिलता है आप उसका उपयोग नहीं कर सकते बेखूबी। कहते हैं अगर देखा जाए तो इसमें बहुत से प्रोडक्ट जो होते हैं इसी से बनाई जाती है। इवन कि जो इस रोड पे आप चलते हो कोल टार भी इसी से बनाया जाता है, जो काला द्रव्य होता है जिससे रोड बनाई जाती है। तो कहते हैं पेट्रोलियम के जो है जब तक हम उसको शोध नहीं करेंगे, उसके इम्प्योरिटी को नष्ट नहीं करेंगे, तब तक जो है यूज़ लायक नहीं रहेगा। आपको पता है पेट्रोल से जो है डीजल, केरोसिन, ठीक है, बहुत से गैसों का उत्पादन होता है। यानी देखा जाए तभी तो इसको काला सोना के नाम से जाना जाता है कि कच्चा पेट्रोल जो ज़मीन के अंदर निकलता है उसे सीधे उपयोग लाने पहले प्राकृतिक अशुद्धियों को जो है परिक्रमण करना जरूरी पड़ता है। यानी जो उसमें जो है प्राकृतिक अशुद्धियाँ होती है उसको दूर करना ही जो है शोध कहलाता है। तो इसको जो है आश्वन विधि द्वारा हम जो है अलग कर सकते हैं। आश्वन विधि जो होते हैं आपने छोटे क्लास 8th 9th में पढ़े होंगे कि आश्वन विधि बहुत महत्वपूर्ण होता है। शायद अब के समय में CBSE से हट गया हो, लेकिन पुराने समय में ये अवश्य था, ठीक है, आश्वन विधि। पेट्रोलियम का परिकलन एक जो है जटिल रासायनिक अभियांत्रिक प्रौद्योगिकी है। यानी देखा जाए तो पेट्रोलियम का जो परिकलन अलग करते हैं एक अभियांत्रिक यानी यंत्रों के द्वारा जो है इसको अलग किया जाता है, क्योंकि ये जो होता है सागरों महासागरों कई क्षेत्रों में जो है मुफ्त पाया जाता है। तो इसको जो है निकाल के जो है इसको शोध करते हैं, तब जाके जो है हमें पेट्रोल मिलता है, और पेट्रोल के उसके बाद जो है हम शुद्धिकरण करते हैं। इसमें से बहुत से प्रोडक्ट भी उत्पादन होता है। और अंतिम प्रोडक्ट की हम बात आपको पहले बता चुके हैं, कोलतार जो रोडों पर उपयोग किया जाता है वो अंतिम होती है, ठीक है। इवन कि जो वस्त्र भी पहनते हो ये पेट्रोलियम का ही एक पार्ट होता है। तभी तो कहते हैं कि नायलॉन जो होते हैं ये जब पेट्रोलियम वाले कपड़े होते हैं उनसे आग से दूर रखो, नहीं तो फटाक से जलने लग जाते हैं। कहते केवल एक शोध जो है तेल शोधक संयंत्र रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा निजी क्षेत्र में संचालित है। और कहते हैं इसके शोध की अगर हम बात करें तो रिलायंस एकमात्र प्राइवेट सेक्टर है, यानी केवल वो एक निजी क्षेत्र है जहां पर जो है की जाती है। यानी रिलायंस इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेशन जो है एकमात्र जो है निजी जो है शुद्धिकरण क्षेत्र है। सार्वजनिक क्षेत्र के तेल शोधन संयंत्र जो है डिगबोई, बेगाईगांवा, न्यूनामाटी तीनों संयंत्र असम में है। मुंबई में 2 इकाई है, महाराष्ट्र विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, बरौनी बिहार, कोयली गुजरात, मथुरा उत्तर प्रदेश, पानीपत हरियाणा, कोचिन केरल, मैंगलोर कर्नाटक, चेन्नई तमिलनाडु में ये सारे के सारे जो है आपको उपलब्ध हो। यानी 17 जो है तेल शोधन केंद्र है, सिर्फ एक जो है प्राइवेट है वो है रिलायंस इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड। ओके, उसके बाद कहते हैं जवाहरनगर गुजरात में जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज और निजी क्षेत्र में संचालित एकमात्र जो है तेल शोधक संयंत्र है। यानी रिलायंस इंडस्ट्री जो है गुजरात, कहाँ है? गुजरात में, कहाँ पर? ये जामनगर में, जामनगर गुजरात में जो है रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा जो है निजी क्षेत्र उत्पादन है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन तेल शोधक संयंत्रों को जो है कच्चे तेल की आपूर्ति या तो जहाज़ों द्वारा अथवा पाइपलाइनों के द्वारा की जाती है। तो आप समझ सकते हो कि जो ये शोध संयंत्र जो है तेल शोधक संयंत्र जो है कच्चे तेल की आपूर्ति जो होती है विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचाया जाता है, तो या तो जहाज़ों के द्वारा पहुंचाया जाएगा या पाइपलाइनों के द्वारा जो है यहाँ से दूसरे जगह पर पहुंचाया जाता है, जो कि काफ़ी सरल माध्यम है। इधर भी पेट्रोलियम उत्पाद की वार्षिक दर बढ़ती नज़र आती है, क्योंकि आपको पता है जैसे समय बीत रहा है पेट्रोलियम का जो है उत्पाद तो कम रहा है, लेकिन इसकी जो है वार्षिक दर बढ़ती ही जा रही है। तभी पेट्रोल डीजल जो है इतने महंगे मिल रहे हैं। किंतु भारत को अपनी आवश्यकता की पूर्ति जो है पेट्रोल एवं पेट्रोलियम उत्पादों के बाहर से आयात द्वारा
करना पड़ता है। और भारत की बात करें तो भारत जो है दूसरे देशों से जो है आयात करता है पेट्रोलियम पदार्थ का और पेट्रोलियम का। तो आप समझ सकते हो कि भारत को जो है बहुत ही सावधानी के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट के रूप में आया है कि वर्तमान में भारत में 17 जो है तेल शोधक संयंत्र सर्वाधिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है तथा एक संयंत्र जो है निजी क्षेत्र है जिसको हम बात कर चुके हैं, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। इधर भी वार्षिक उत्पादन की गति बढ़ती नजर आ रही है। देखा जाए तो उत्पादन की जो है बढ़ती नजर आ रही है, लेकिन अभी अपनी आंतरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भारत को पेट्रोल का आयात करना पड़ता है, क्योंकि भारत में इतने अधिक पेट्रोलियम है नहीं जिसको जो यूज़ कर सके, इसलिए बाहर से जो है इसको आयात किया जाता है, जो कि बहुत ही समय के साथ बदलता भी रहा है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेयर, नेचुरल गैस। व्हाट डू यू मीन हियर द नेचुरल गैस? You know that natural gas is the most important here. Natural gas is engineering an important source of commercially energy. There is a commercially energy only. The most of the time it is found in association with the petroleum. There is a petroleum. The recoverable is a reserve is a natural gas as on 1st April 2001 are estimated at 638 billion cubic meters here. But this is a quality will be increased as a more and more reserves are discovered at the eastern quarter, namely of Krishna, Godavari, Mahanadi basin here. And production of natural gas in 2003 to 2004 was about 31 billion cubic meters here. Gas Authorities of India was established in a year 1984. There is an important here. The Gas Authorities of India was established in the year 1984 with on the aim for processing, transporting and distributing and marketing of natural gas here. There is a most important aim here, processing, transporting and distributing and marketing of natural gas here. The company Oven is operate a network of cover 5,340 kilometers of natural gas pipeline in the country. There is a most important achievement here. अगला पॉइंट जो हमारे समक्ष आया है प्राकृतिक गैस। देखिए प्राकृतिक गैस आपको पता है कि बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है और आज के समय में प्राकृतिक गैस जो है हर जगह यूज़ किया जा रहा है, तो इसकी और भी महत्वता को यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। तो प्राकृतिक गैस की बात करें तो प्राकृतिक गैस अब जो है वाणिज्यिक ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में उभर कर आ गया है। यानी भारत में अगर देखिएगा तो प्राकृतिक गैस का हर जगह उपयोग हो रहा है, हर रसोई घर में इस्तेमाल किया जा रहा है एलपीजी का, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सारे के सारे प्राकृतिक गैस या सीएनजी गैस जो है सब प्राकृतिक गैस है। आपको देखोगे सीएनजी का जो है बड़े बड़े जो मोबाइल इंडस्ट्रीज में भी यूज़ किया जा रहा है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्राय पेट्रोलियम उत्पादन में आनुवांशिक रूप से प्राकृतिक गैस मिलने की संभावना बनती ही है और प्रति लंबे भंडार के प्राकृतिक गैस भारत में जो है 1 अप्रैल 2001 के आकलन पर आधारित है। यानी देखा जाए तो भारत में 2001 के आकलन से आधारित है और कहते हैं भंडार लगभग जो है 638 अरब घन मीटर है। तो आप समझ सकते हो कि काफ़ी है, 638 अरब घन मीटर है। आशा की जाती है कि भविष्य में कृष्णा, गोदावरी और महानदी घाटी के क्षेत्रों में भी चल रहे अन्वेषण के प्राकृतिक गैस के अनेक भंडार को मिलने की इसकी मात्रा बढ़ेगी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, यहाँ पर प्राकृतिक गैस के भंडार जो है हो सकता है कि आने वाला समय में मिले, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये भंडार अगर हमारे भारत में है तो इसको आज न कल तो जरूर इसका मिलना स्वाभाविक रहेगा। वर्ष 2030 से 2004 में जो है प्राकृतिक गैस के भारत में उत्पादन करीब 31 अरब घन मीटर था। तो आप समझ सकते हो 2003 और 2004 में प्राकृतिक गैस का भारत में उत्पादन करीब 31 अरब घन मीटर था। भारत में प्राकृतिक गैस जो है प्राधिकरण की स्थापना जो है 1984 में की गई थी, यानी 1984 में की गई थी, जो काफ़ी महत्वपूर्ण थी। और इस प्राधिकरण का उद्देश्य प्राकृतिक गैस का जो है संसाधन, परिवहन, वितरण एवं उसकी सुव्यवस्थित विपणन कराना, यानी काफ़ी महत्वपूर्ण बात को यहाँ इजागर की गई है। देखा जाए तो इस प्राधिकरण का उद्देश्य प्राकृतिक गैस का काफ़ी उपयोग करना है। प्राधिकरण के अधिकार जो है अधिकार एक संचालन के अंतर्गत 5340 किलोमीटर लंबी जो है गैस पाइपलाइन भारत में बनाई गई है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और प्राकृतिक गैस का जो है आज के समय में उसको वितरण, संसाधन, परिवहन में काफ़ी आ रही है, महत्वपूर्ण रखता है। और इसकी जो है सबसे अधिक तो जो है पाइपलाइन के द्वारा इसका की जा रही है। तो आप समझ सकते हो 5340 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन बनाना आम बात नहीं है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है।
So our next topic is the most important here, atomic minerals. There is atomic minerals here. There is important. Atomic energy can be produced by fusion as a fusion. Fission and fusion of their atomics are rather the nuclear part of the radioactive mineral like uranium, thorium, and radiums. India is a possess. There is a world as the largest is a reserve of monazites, the principal of source of thorium, and some are reserve of the uranium. That is an important here is the atomic minerals here. And the first here, uranium. Uranium is the most important here. In India, uranium is embedded in their igneous and metamorphic rock in the Jharkhand, Rajasthan, Andhra Pradesh, and some part of Himalaya. You know that there is an important here. The uranium in India is uranium is embodied to igneous and a metamorphic rock. There is important igneous and metamorphic rock there is present, and mainly here Jharkhand, Rajasthan, Andhra Pradesh, and some part of Himalaya. A substantial source of the uranium deposit is also found in the monazite sand along the Kerala coastals. The production of the uranium at the present is confined to be a mine at the Jadguda in the Rasigha Bhomam district of Jharkhand. There is an important here present of uranium, and the total reserve of the uranium is a country are enough to support the 5,000 to 10,000 is a MW of the electricity generating capacity. You know that there is the most important 5,000 to the 10,000 megawatt of electricity generate of capacity of there is important uranium. Uranium is important for the all of country. There is a use of the megawatt of air electricity in production. And thorium is here. Thorium is principally obtained from the monazite. The beach sand of the Kerala is a Palaghat and Kolan districts content to the world as richest monazite deposit here. It is also occurred on the sand of Visakhapatnam in Andhra Pradesh. You know that Visakhapatnam is Andhra Pradesh here. Here come to some important point, notable point. They are not in your notebooks. There is the most important in this box. The production of uranium is presently confined to be a mine of the Jadgoda and Singhbhum district of Jharkhand. India is supposed the world's largest monazite reserve as the principal source of thorium. And here the beach sand of Kerala and Palghat and the Gleniums district of contain of world's richest monazite deposit here. In India, uranium is found in the igneous and metamorphic rock. There is an important point. There is the uranium is found here, igneous and metamorphic rock in the Jharkhand, Rajasthan, Andhra Pradesh, and some part of Himalaya. That is the most important here. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है अत्यंत महत्वपूर्ण पाठ के बात करने हम जा रहे हैं आणविक खनिज। देखिए आणविक खनिज का क्या महत्व है, तो देखा जाए तो आणविक खनिज जो है एक परमाणु शक्ति का उत्सर्जन इन खनिजों के अंदर ही व्याप्त परमाणु विखंडन या विलीनीकरण से होता है। तो आपको पता है कि पूरे विश्व जो है आणविक खनिज के रिगार्डिंग ही उनका जो है विद्युत शक्ति चलती है, लेकिन भारत जो है इसमें अभी अग्रसर नहीं है। भारत में कुछ ही क्षेत्रों में जो है इसका जो है चल रहा है कार्य, लेकिन ये बहुत ही कहते हैं इम्पोर्टेंट है। यानी परमाणु का जो उत्सर्जन इन खनिजों के अंदर ये व्याप्त परमाणुओं के विखंडन या विकलन के द्वारा होता है, और इन खनिजों के अंतर्गत जो है यूरेनियम, थोरियम, रेडियम्स आते हैं। जो भारत में जो है विश्व का सबसे बड़ा भंडार जो है मेनाजाइटिस का है, यानी भारत में देखें तो विश्व का सबसे बड़ा भंडार मेनाजाइटिस का है, जो थोरियम का ही स्रोत होता है। तो आप समझ सकते हो कि भारत में जो है इस खनिज का जो है बहुत उज्जवल भविष्य है, और इसके अलावा यूरेनियम के भी भंडार हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है कि विश्व का सबसे बड़ा भंडार हमारे पास है मेनाजाइटिस का। यदि हम बात करें यूरेनियम का, तो यूरेनियम के बात साफ यहाँ बताया गया है कि भारत में यूरेनियम जो है अग्नेय और रूपांतरित शैलों में मिलती है। यानी यूरेनियम जो है मुख्य तौर पर अग्नेय और रूपांतरित शैलों में स्थानांतरित जो है अंतर्स्थापित होकर पाए जाते हैं। ऐसे विशिष्ट जो है खनिज युक्त शैल झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश तथा हिमालय के कुछ भागों में अवश्य पाए जाते हैं। केरल के तटवर्तीय क्षेत्रों में काफ़ी बड़ी मात्रा में यूरेनियम मैग्नेटाइट्स जो है बलुआओं के ढेरों में उपलब्ध है। तो आप समझ सकते हो कि केरल का तट भी काफ़ी रिच है, क्योंकि यहाँ पर जो है यूरेनियम और मैग्नेटाइट्स के जो है बलुआओं के ढेरों में उपलब्ध है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है।
वर्तमान में यूरेनियम का उत्पादन जो है सिंहभूमि जिले झारखंड की जो है जादूगोड़ा खदानों से किया जा रहा है और भारत में यूरेनियम के भंडार जो है 5,000 से 10,000 मेगावाट बिजली उत्पादन करने में सक्षम है। तो आप समझ सकते हो कि आने वाला भविष्य जो है इन्हीं पे यूरेनियम पे ही टिका हुआ है, जहाँ पर 5,000 से 10,000 मेगावाट बिजली उत्पादन करने की क्षमता रखता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात आता है थोरेनियम। देखिए थोरेनियम क्या है, देखिए कहते हैं थोरेनियम मुख्य रूप से मैग्नेटाइट्स बालू में मिलते हैं, यानी थोरेनियम जो है मुख्य तौर पर जो है मेनाजाइटस बालू में मिलते हैं। कहते हैं केरल के जो है पालघाट तथा कोलम्स यानी किलोविलोंस में जिले में पाए जाने वाले बलुआओं में विश्व का सर्वाधिक जो है मेनाजाइटिस खनिज मिलता है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भी बलुआओं में मैग्नेटाइट पाया जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। और महत्वपूर्ण यहाँ पर बॉक्स है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इस बॉक्स में जो है काफ़ी महत्वपूर्ण बातों को उजागर किया गया है, जिसको आपको नोट डाउन करना चाहिए, कॉपी में लिख लेना चाहिए, क्योंकि इसी के अंतर्गत जो एग्जाम में पेपर रहता है। तो पहली बात तो यही बात आता है कि वर्तमान में यूरेनियम का उत्पादन जो है जादूगोड़ा के खदानों से किया जा रहा है, यानी अभी के समय जो यूरेनियम का उत्पादन जो है मैक्सिमम जादूगोड़ा के खदानों में की जा रही है, जो कि बहुत बात ही काफ़ी महत्वपूर्ण है। थोरियम का मुख्य स्रोत जो है मेनाजाइट्स है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसका भंडार विश्व में सबसे अधिक भारत में ही पाया जाता है। तो आप समझ सकते हो कि कम से कम भारत जो है मेनाजाइटिस से काफ़ी परिपूर्ण है, यानी भारत में ही विश्व के सबसे अधिक बड़ा भंडार पाया गया है। समय तटीय बालू जिनमें जो है मेनाजाइटस मिलता है का केरल के जो है पालघाट और कोलम जिले में विशाल भंडार है, जो पूरे विश्व में सबसे अधिक है। अब देखिए कोलम जिले में सबसे बड़ा भंडार है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत में यूरेनियम झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, हिमाचल के कुछ भागों में आग्नेय और रूपांतरित शैलों में मिलते हैं, यानी इसका भंडार मुख्य तौर पर आग्नेय और रूपांतरित शैलों में मिलते हैं। और मुख्य तौर पर ये यूरेनियम जो है झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और हिमालय के कुछ क्षेत्र में मिलते हैं। तो ये देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन्हीं के कारण जो है भारत का जो है उज्जवल भविष्य है और भारत में बहुत सी संभावनाएं हैं। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी खत्म हो जाता है। तो इस टॉपिक को अगर आपको समझ में आया है तो जितना हो सके इस वीडियो को जो है दूसरे बच्चे तक पहुंचाने में आपने तिरपान स्टडी सेंटर का हेल्प करना है। कहते हैं दोस्तों, जब तक हेल्प नहीं की जाता तब कुछ भी जो है आगे विकास नहीं होगा। कहते हैं हर जगह विकास में एक अकेला बंदे का हाथ नहीं होता है, हर व्यक्ति का जो है महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो आप भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हो तिरपान स्टडी सेंटर को आगे बढ़ाने में। तो अभी सोचना नहीं है, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और लाइक भी करना है, ठीक है, क्योंकि जितना प्रोत्साहित मुझे करोगे उतना आपके लिए जो है यहाँ पर वीडियो उपलब्ध होगा। और मैं जानता हूं कि बहुत से बच्चे जो हैं वीडियो देखते हैं, समझते हैं, उनको समझ में भी आता है और अच्छा कमेंट भी कर रहे हैं। और कमेंट करना अच्छी बात होता है, इससे मुझे समझ में आता है कि आपको किस प्रकार जो है गलतियां हो रही है, किस बात को उसको सुधारा जा सके। ठीक है, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको तिरपान स्टडी सेंटर पसंद आता है, बाद में अगर कोई टॉपिक रिसर्च कीजिएगा तो शायद दूर दूर तक तिरपान स्टडी सेंटर नजर ना आए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेने में ही फायदा है। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको होम पेज मिल जाएगा, जहां पर सारे वीडियो जो है बखूबी उपलब्ध है। अगर आप किसी क्लास वाइज देखना चाहते हो, टॉपिक वाइज देखना चाहते हो या सिलेबस वाइज देखना चाहते हो तो इसका भी प्रावधान है। इस पे जो है आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जहां पर हर एक वीडियो जो है आपके क्लास वाइज है, आपके टॉपिक वाइज है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। और साथ में कमेंट करना मत भूलिएगा।